Today I want to tell you one thing. एक बात मैं आज आपसे कहना Nobody from the outside can tear down those walls. कोई बाहर से वो दीवार नहीं तोड़ सकता. Nobody कोई भी नहीं can bring down the wall that you have made. जो आपने दीवार बनी है उसे तोड़ सकता. Unless today you determine that you're going to bring down that wall. जब तक आप ये फैसला न कर लो कि इस दीवार को मैं तोड़ूंगा. You thought you were protecting yourself from being hurt. You have trapped yourself, beloved. आप समझ रहे थे कि आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है कि कोई आपके दिल को चोट न पहुंचाए, लेकिन आप इसमें फंस गए हो मेरे प्यारे. God is saying today, if you bring down that wall, the rubble of that come down will become a bridge for you to cross and go into your joy. और प्रभु कह रहे हैं कि वो दीवार जो आप गिरा दोगे और वो जो ढेर जमा होगी उसी से रास्ता बनेगा कि आप उसमें चल सको. Unless you have freedom, जब तक वो आजादी ना होगी, you will not see the blessings of God which you're dreaming about, asking Him and praying for. तब तक आप परमेश्वर की वो आशीषें नहीं दे सकोगे जिसके सपने आप देखते हो. Unless your hurts and your rejections and pains are dealt with. और जब तक वो दिल की चोटें, वो तुच्छ जाना और वो तकलीफें निकाल दी ना गई हो. God cannot use you wholeheartedly, fully and openly for His kingdom and for His glory. तब परमेश्वर पूरे दिल से, संपूर्णता से उसके राज्य के लिए आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते. Identify this. ये बात को पहचानिए. People who are hurt and rejected, और वो लोग जिनके दिल पर चोट पहुंची है या तुच्छ जाने गए हैं, a sentence that they say, और वो ये वाक्य कहते हैं, I'm not going to get anyone come close to me because I am not going to let anyone hurt me anymore. वो कहते हैं मैं किसी को अपने नजदीक आने नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैं किसी को भी मेरे दिल पर चोट पहुंचाने नहीं दूंगा. God is dealing with your life today. आज प्रभु कह रहे हैं कि ये सब बातें अपने दिल से He निकालो. wants you to be healed today. वो चाहते हैं कि आज आप चंगाई पाए. Because Satan has a great plan to bring rejection in your life and steal you from the joy of life and take away the blessings of God from you. क्योंकि शैतान ने ये महान योजना बना दी है कि आप दुनिया में तुच्छ जाना जाए और वो आशीष जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, वो आनंद जो आपको देना चाहते हैं, वो चुरा ले. Before you even knew it, my friends, और इससे पहले कि आप जानते भी you नहीं were a थे, baby. आप छोटे थे. You did not even know why Satan would allow hurt and rejection to come in your life. क्यों शैतान आपके जीवन में आपके दिल को चोट पहुंचा रहा है या आपको तुच्छ जानता है. You did not even know he did not want you to be where God has destined you to be. क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप वह उस मुकाम पे पहुंचे जहां प्रभु आपको पहुंचाना चाहते And हैं. what have you been doing? और आप क्या कर रहे हैं? You tried something, it didn't work. You tried something else, it didn't work. You went this way, it didn't work. और आपने कोशिश करके ये देखा, कुछ काम में नहीं आया. आपने ये करके देखा, कुछ काम में नहीं आया. आप यहाँ गए, कुछ काम में नहीं आया. The result और is इसका परिणाम ये हुआ. you now hate God. और अब परमेश्वर से You नफरत, hate yourself. अपने आप से You hate नफरत, others दूसरों से भी नफरत, because you think life is sucks. क्योंकि आपको लगता है कि जीवन तो ऐसा ही है, There's no meaning to this life. कोई मतलब ही नहीं है इस जीवन का. Friends, मेरे दोस्तों, this is Satan telling you a lie. ये शैतान आपसे झूठ कहता He है. is a liar. He is the father of वो lies. झूठा है, वो झूठों का पिता है. Turn to your neighbor and say, devil is lying to you. अपने अड़ोसी पड़ोसियों को देखो और कहो, शैतान तुमसे झूठ कह रहा है. Always remember, my friends, हमेशा याद रखो मेरे दोस्तों, that the root, if it is bad, अगर जड़ बुरी होगी the fruit will be bad. तब फल बुरा होगा. God is not dealing with your fruits before He deals with your roots. और इसी तरह से वो फल वो नहीं निकालेंगे जब तक वो जड़ें नहीं निकालेंगे. He cannot use your fruits for the glory of His kingdom till He has uprooted hurt, uprooted rejection, uprooted pain and healed you from your roots down. वो आपके फलों को नहीं इस्तेमाल करेंगे जब तक वो जड़ से उखाड़ ना फेंकेंगे वो दिल जो आपका रुका है और वो तुच्छ जो आप जान गए या जो भी कोई तकलीफ आपको पहुंची है. And God is here to do something in your life today. और आज प्रभु यहाँ मौजूद है आपके जीवन में कुछ करने. As it says in Isaiah 61:3, He said that you may be called the trees of righteousness, और the जैसे planting of the Lord, that He may be glorified. और जैसे यशाया में 61:3 में उन्होंने कहा है कि आप धार्मिकता के पेड़ों परमेश्वर की ओर से लगाए हुए और आपको उसकी महिमा के लिए प्रकट किया गया है.
I want to tell you one thing, friend. और मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरे दोस्तों, If you are rooted in philosophy, और अगर आपने जड़ इस दुनिया के फलसफे में डाली है, if you are rooted in the new age theory, और अगर नई पीढ़ियों की शिक्षा में अगर आपने जड़ if पकड़ी you are rooted in what the world is teaching today, और अगर आपने जड़ पकड़ी है उस बात में जो आज दुनिया सिखला रही it's है, not going to get you anywhere. तब आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, Because your root will determine your fruit. क्योंकि आपका जो जड़ है वही बतलाएगी कि आपका फल कैसा है। And that's why God is saying to you, और इसीलिए प्रभु आज आपसे कह रहे हैं, you need to be rooted in the word of God. और आपको जो है परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़नी है। You need to be rooted in the word of God. परमेश्वर के वचन में आपने जड़ पकड़नी है। And my dear beloved, और मेरे प्यारो, if you are not rooted in the word of God, you stand no chance in this और world. अगर आप परमेश्वर के वचन में अगर आपने जड़ नहीं पकड़ी है तो आपको कोई मौका ना मिलेगा। The creator of this world says, और इस दुनिया की सृष्टि करने वाला कहता है, our God Almighty says, हमारा महान परमेश्वर कहता है that the grass withers, कि घास तो सूख जाएगा the flower fadeth, और फूल मुरझा जाएंगे, but the word of the Lord endures forever. लेकिन परमेश्वर का वचन कायम रहता है। Hallelujah. हालेलुया। The creator has said this. और ये सृष्टि के रचने वाले He ने says, कहा है, my word endures forever. उसने कहा है कि मेरा वचन कायम रहेगा। And the Bible says और बाइबल कहती है that you, the church, is the body of Christ. कि आप जो कलीसिया है वही यीशु के शरीर There है, are many parts of that one body. और उस शरीर के हम कई हिस्से हैं, But for these parts to come together, लेकिन ये हिस्से जब एक होंगे, Ephesians says we have to be fitly joined together. इफिसियों की पुस्तक कहती है कि हमें जो है एक दूसरे से जुड़ना है। Hallelujah. हालेलुया। We have to be fitly joined. और हमें एक दूसरे से जुड़ना You है। know, when Chaitanya and me, if we meet our shoulders, there should be nothing, not even a bone coming between us. We have to be fitly joined together. और इस तरह से जब चेतना और मैं हम ऐसे जुड़कर खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं कि कोई जगह बाकी रह जाए। There should be nothing, no rough edges, no poking out, nothing poking and hurting and piercing. और कोई चीज नहीं रह जाती जो चुपती है या नोकीले कोने जो एक दूसरे को चुपते हैं। Every edges of yours God will smooth. He will smooth. He will grind you. He will just take the chisel and shape you. और उसी तरह से हर एक नोकीले कोने को आपके जीवन से वह निकालेगा। Why? क्यों? Because you and I together have to be fitly joined together. क्योंकि आपको और मुझे जो है एक होकर जुड़ जाना है। Hallelujah. हालेलुया। So remember the purpose God has created you. और वो मकसद जिसकी वजह से परमेश्वर ने आपको बनाया है हमेशा याद रखिए। Turn to somebody and say, God is talking to you. किसी के और मुड़े और कहे प्रभु आपसे बात कर रहे And हैं। as we come to the remedy, और जैसे हम इस हल पर आते हैं, an important thing that I want you to hear. और एक जरूरी बात है जो मैं चाहती हूँ कि आप सुने, But before that, I want you to shout amen. लेकिन उससे पहले आप आमेन चिल्लाइए। If you find that you are overly defensive, और अगर आपने ये देखा है या महसूस किया है कि आप जो है जरूरत से ज्यादा अपना बचाव करते हैं या अपनी सफाई पेश करते हैं। if I tell Chetna, this is not how you should do this, you say, but Rani, I do it because, I had this in mind and this is why I was doing it. And you're defending your action before I could even bring the correction. This is a symptom. और इसी तरह से मैं अगर चेतना से कहूँ कि ये ठीक नहीं है जो तू कर रही है, ये तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो इससे पहले कि मैं अपना वाक्य समाप्त भी करूँ, वो कहेगी मैं तो इसलिए कर रही थी, मेरे दिमाग में था कि मैं ये करूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी, क्योंकि वो ज्यादा ही अधिक जो है अपने आप की सफाई पेश करना चाहता है। And Chetna today is 40 plus. और आज चेतना 40 से भी ऊपर है। But this problem of hurt and rejection that makes her be defensive is not of today. और ये समस्या है क्योंकि उसके दिल पर चोट पहुंची है, वो तुच्छ जानी चाहिए, वो आज की नहीं है। It is not since she came and became a part of prayer and care center. ये तब से नहीं है जब से वो ये प्रेयर और केयर सेंटर का हिस्सा बनी है। This hurt and rejection is from childhood. और ये दिल को जो दुख रहा है, चोट लगनी है और ये जो तुच्छ जाना है, वो बचपन से ही है। And that root in her always becomes defensive. और उसके अंदर जो ये त्यागी गई हुई जो जड़ है, वो हमेशा जो है अपनी सफाई पेश करती है। Come on, identify what I'm saying.
पहचानोगे मैं क्या कह रही हूँ। If you are a person who when somebody gives you an advice, और कोई इंसान कभी आपको कोई सलाह देता है, instead of doing what you're advised to do, you will do exactly the opposite of it. तो जो सलाह दी गई है वो करने के बजाय आप कुछ उल्टा ही करोगे। Why do you do that? ऐसा आप क्यों करते हो? You're not a bad person. आप कोई बुरा इंसान नहीं That is है। because of the root of hurt and rejection since when you were a child. वो एक जड़ थी, वो दिल की चोट लगने की और तुच्छ जाने की। If you're criticized, और अगर आपको बताया गया है कि नहीं ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, ऐसा करो, you take it as rejection. और आप सोचते हैं, आप समझ लेते हैं कि आपको तुच्छ जाना You गया है, become offensive and defensive of yourself. और इस तरह से फिर जो है आप अपना बचाव करना चाहते हो। It is not because God doesn't love you. इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको प्रेम नहीं It's करता, not because you're a bad person. और इसलिए नहीं कि आप बुरा इंसान हैं, It is because you did not know you were carrying something from your childhood. और वो इसलिए क्योंकि आप ये नहीं जानते कि बचपन से आप कोई चीज उठाए थे। And such people can very easily confront others, but they cannot take confrontation. और इस तरह से ऐसे लोग जो है दूसरे के सामने तो बहुत आसानी से सामना करने आ जाते हैं, लेकिन जब कोई उनका सामना करता है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। The moment somebody confronts them, they react. और जिस वक्त भी कोई उनका सामना करता है उसी वक्त वो रिएक्ट करते हैं। And what is the result? और इसका परिणाम क्या होता है? They feel that why is it that I am rejected? और फिर उन्हें लगता है कि क्या बात है, मुझे तक तुच्छ क्यों गिना जाता I है। hope I'm in the right church today. मैं आशा करती हूँ कि आज मैं सही के He लिए, did ask me to speak this, और उसने मुझसे कहा है ये कहने के लिए, and I hope you know what he's speaking. और आप आशा करती हूँ कि आप जान रहे हैं कि वो क्या कह रहे But हैं। one thing you have to see about these people, लेकिन इन लोगों के बारे में एक चीज आपको देखनी है that God is here to heal today. कि प्रभु यहाँ पर मौजूद है, They are चंगाई देने। overly competitive. They want to do the best. और वो जो है जरूरत से ज्यादा तुलना करते हैं और वो सबसे बेहतरीन And करना they'll do anything to compensate for that. और वो अपनी भरपाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है, Because they try to win people's approval. क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उनसे ना नहीं कहे कि तुम सही कर रहे हो। Are you with me? क्या आप हमारे साथ They like it when people say they're good because somebody in their childhood told them they're bad, they're bad, they're bad. और उन्हें अच्छा लगता है जब उनसे कोई कहता है कि हाँ तुम ये अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छे हो, क्योंकि कोई था जो बचपन में उनसे कहता था कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। And another symptom is they have jealousy. और एक चिन्ह है कि उनमें जलन होती है, And they try to control their life. और वो अपने जीवन पर काबू करना चाहते हैं, Because they are afraid if they did lose control, they will be hurt. और फिर वो डरते हैं इस बात से कि अगर ये काबू न रहा तो वो अपना जीवन गवा बैठे। How do you know whom I'm talking to? आप कैसे जानोगे कि मैं किससे बात कर I रही don't know whom I'm talking to. हूँ? मैं ये नहीं जानती कि मैं किससे बात But कर if रही you are overly ambitious in life, हूँ। लेकिन आप कुछ ज्यादा ही कर गुजरना चाहते हो, but every step in life you take, you're insecure. और हर एक कदम आप उठाते हो असुरक्षिता होती है, You wonder whether it should be or it should not be. और आप हैरानी में रहते हो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, And you're tormented with what people think about you. और इस तरह से हमेशा तकलीफ में रहते हो, ये सोचते हुए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। God is telling you today, आज प्रभु आपसे कह रहे हैं I love you, my child. कि मेरे बच्चे, मैं तुझसे प्यार I करता love you, my son. हूँ, मेरे बेटे तुझसे प्यार करता I हूँ, love you, my daughter. मेरी बेटी मैं तुझसे प्यार करता And I हूँ, have brought you a solution today. और आज इसका हल ले आया हूँ मैं, I have a 5-step solution for you today. और ये 5 कदम इस हल के लिए तुम्हें उठाने So होंगे you may know it. ताकि तुम जान सको, And you may do it. ताकि आप कर सको, And you may be blessed. और आपको आशीष मिले, And you will be used extensively for the kingdom of God. और आप परमेश्वर के राज्य के लिए बेहद इस्तेमाल किए The जाओगे। step number 1 is और पहला कदम वो है, you need to go to the Lord. और आपको परमेश्वर के पास जाना है, You need to go and admit it is you that is going through such pain. और आपको जाकर प्रभु के सामने कबूल करना है कि आप हैं जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। And you got to understand that you cannot heal yourself. You cannot change yourself. If you could, you would have. और आपको ये बात समझनी है कि आप अपने आप को चंगाई नहीं दिला सकते, अगर ऐसा कर सकते तो आपने कर लिया होता। Are you with me, church? क्या आप इससे सहमत हैं? You got to understand that. आपको ये समझना है, And God is saying to you, और आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, today all you have to do, आज आपको इतना ही करना है, look up to the Lord and say, heal me. परमेश्वर के और ऊपर देखे और ये कहे, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझको चंगाई दे।
And until you get well, और जब तक आपको चंगाई मिले, know one thing, एक बात जान लीजिए, the Lord will not be at peace for you. तब तक प्रभु शांति से नहीं बैठे, Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करते He हैं। wants the best for you, my child, He वो says. प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को बेहतरीन देना चाहता हूँ। And I am not here to abandon you, the Lord is saying. और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें त्यागने के लिए यहाँ पर नहीं आया But हूँ, I'm here to heal you. लेकिन आपको चंगाई देने आया Step हूँ। number 2. और कदम दूसरा, If you're going to ask Him to heal you, और अगर आप उनसे मांगना चाहते हैं कि आपको वो चंगाई दे, then you got to let go of every bitterness that you were harboring towards anybody from the last of your age that you can remember. और उसी तरह से तब आपके दिल में जो भी कोई कड़वापन है, आपके अंदर जो भी कोई कड़वापन है, शुरू से लेके अभी तक आपको निकाल देना है। Listen, beloved, और सुनो मेरे प्यारे, anybody may have hurt you. God is saying, remove that hurt today. और किसी ने भी आपके दिल को चोट पहुंचाई होगी, प्रभु कहते हैं आज उससे बुला दो। And you may be sitting there in the silence of your heart saying, और आप जो है अपने दिल में बैठे खामोशी से ये कह रहे होंगे, no, they don't deserve to be forgiven. अरे वो इस काबिल ही नहीं है कि उन्हें क्षमा किया The Lord जाए। is saying to you, लेकिन प्रभु आपसे कह रहे हैं, sure, सही बात है, but did you deserve to be forgiven? लेकिन क्या आप इस काबिल थे कि आपको Did क्षमा you किया जाए? deserve to be forgiven from God? क्या प्रभु की ओर से आपको क्षमा मिलनी चाहिए थी? And it was you that God forgave without you having deserved it. Why can't you forgive others? और इस तरह से आप भी इस काबिल नहीं थे, लेकिन प्रभु ने आपको क्षमा किया, तो आप क्यों नहीं दूसरों को क्षमा That कर is why सकते? James says, और इसीलिए याकूब कहता है, confess your faults one to another. एक दूसरे से अपनी गलतियां कबूल Don't करो। hide your faults. अपनी गलतियां मत छुपाओ, Because by hiding them, they will be deep rooted in you. और अगर आप उसे छुपाते जाओगे तो वो गहराइयों में जाकर पकड़ लेगी। Speak what your problem is. जो भी आपकी समस्या है वो कहे, Reach out to somebody, tell them what your problem is. और किसी के पास जाए, किसी से मिले, उनसे राय ले, उनको बतलाए कि क्या आपकी समस्या है। Because James says, क्योंकि याकूब कहता है confess your faults one to another कि अपनी गलतियां एक दूसरे के आगे कबूल करें and be healed. और चंगाई पाओ, Be healed. चंगाई पाओ। So it is in your hands today. तो आज ये आपके हाथों में है। And the third thing, और तीसरी बात, when you leave the house of God, जब आप परमेश्वर का घर छोड़ कर don't put जाएं, this Bible in your trunk, in your dicky or your hood or what you call your dashboard and go and put it in your side table and forget it for a week. और ये नहीं कि आपकी बाइबल उठाकर आपकी गाड़ी में किसी एक कोने में रख दें या घर में कहीं एक टेबल पर रख कर भूल जाएं। You got to confess the word of God. और आपको कबूल करना है परमेश्वर के वचन को। See what the word is saying about you, your future, your life, for your blessings. और देखो कि परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है, आपके भविष्य के बारे में क्या कहता है, आपके जीवन के बारे में क्या कहता है। Because I know this word works. क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये वचन काम में आता I है। have witnesses sitting here. I told them what God has shown me 2 years from now, 2008, is going to be so much that I can't even express it to you. और इसी तरह से मैंने यहाँ पर बैठे कितने लोगों को एक गवाही दी कि आज से 2 साल के बाद प्रभु क्या करने वाला है, इसकी कल्पना भी आपने कभी न की हो। Because that is what he spoke to me. क्योंकि उसने वो मुझसे कहा है। And I'll be a fool not to confess his word. और मैं मूर्ख बनूंगी अगर उसके वचन को कबूल ही नहीं If you करूंगी। want to make that word today a reality, start confessing what he says to you. अगर वो वचन आप अपने जीवन में एक सच्चाई बनाना चाहते हैं तो उसे कबूल करना शुरू करें। Only then can you say, I am a child of God. और उसके बाद ही आप कह सकोगे कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। Because you will not hear the lie of the enemy, you will say, I am a child of God. फिर वो दुश्मन का जो झूठ है वो आप नहीं सुनोगे, लेकिन ये कहोगे कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। I am redeemed by the blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के लहू से मुझे छुटकारा मिला है। And the Lord has set me free today. और आज परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया Because the है। Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है whom the Lord sets free is free indeed. जिसको परमेश्वर आजाद करते हैं वो सचमुच आजाद है। Keep confessing the word. और वचन कबूल करते You need हैं। help, you see us after church. We will arrange for you to have that confession verses. और इस तरह से अगर आपको मदद चाहिए तो कलीसिया के बाद हमसे मिलिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से करना है। Fourth step, चौथा कदम, after today, आज के बाद forget yesterday. बीते हुए कल को भूल Forget जाइए what happened years ago. और भूल जाइए सालों पहले क्या हुआ था। Forget what somebody did to you. भूल जाइए किसी ने आपके साथ क्या किया। Forget what happened in your childhood. भूल जाइए आपके बचपने में क्या हुआ। Every time it comes to your remembrance, जब भी ये बात आपको याद आए then tell
that my past is under the blood of Jesus. तब ये कहो कि मेरा कल का बीता हुआ परमेश्वर यीशु के लहू में दब चुका है And I have a future with him. और मेरा भविष्य परमेश्वर के संग है. And as long as you keep going further and looking in the rear view mirror, you know what's a rear view mirror? और सब Every car has a mirror, every motorcycle has हर a एक mirror. गाड़ी में एक शीशा होता है, आपने देखा आईना होता है. Why is that mirror there in front or on the side? और इधर साइड में या आगे क्यों आईना होता है? Yes, sister? To see what is behind. ताकि आप देख सको कि पीछे क्या. And as long as your eyes are focused in the rear view mirror and you keep looking behind, you won't get too farther, my brother, my sister. और इस तरह से अगर आप वो आगे वाले आईना में जो पीछे हो रहा है, अगर वही देखते रहोगे तो आप आगे नहीं जा सकोगे मेरे प्यारो. And as you're forgetting your past, और जैसे आप कल का बीता हुआ भूल रहे the हैं, best way to do so, और सबसे बेहतरीन तरीका है ये करने reach के out लिए, to one another. एक दूसरे से मिले Reach out to और others. दूसरों से मिले. Don't say that, I'm better than others. और ये नहीं कहना कि मैं तो उससे बहुत अच्छा हूँ. Or don't say that I'm so bad, how can I go and meet somebody और ये मत else? कह देना कि मैं तो इतना बुरा हूँ, मैं कैसे जाके उससे मिल सकता हूँ. Tell somebody, I'm trying to overcome this problem. Will you help me? Will you Or- pray with me? और किसी से जाइए, मिलिए और उससे कहिए कि मैं इस समस्या का सामना करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? Because hurt, rejection and bitterness, as I close, क्योंकि जैसे हम समाप्ति करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जब दिल को चोट पहुंचती है, जब आपको तुच्छ जाना जाता है, whatever you may be struggling with, चाहे किस भी चीज से आप लड़ रहे God होंगे, is speaking to you today. आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं And He's telling you, take a moment, my child. और वो कह रहे हैं, एक क्षण लो मेरे बच्चे, Search your heart. अपने दिल को परखो. What is it that always comes and pricks in there, hurts you, takes you back and destroys your joy? क्या बात है जो हर बार आपके दिल में चुभती रहती है कांटे की तरह, हमेशा आपको पिछली यादों में ले जाती है. And many times you have tried to get rid of this problem. और कितनी बार इस समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश की Many आपने? times, my friend. कितनी बार मेरे You दोस्त, decided no more am I going to go back and think. और आपने फैसला कर लिया कि अब पिछली बातों में मैं जाकर सोचने वाला नहीं हूँ, But you've still done that. लेकिन फिर भी आप वही करते हो. Today, आज why is it that the Bible speaks to us क्यों आज ये बाइबल हमसे कह रही है that even Jesus was despised? कि यीशु को भी तुच्छ माना गया, He was rejected. उसे भी धुतकारा गया, He was a man of sorrows. और वो दुखी इंसान था, He was acquainted with what grief is. और वो जानता, वो उससे पहचान थी कि दुख क्या है. But beloved, लेकिन प्यारो, He took the cross with all of it so that you and I could be set free. इतना होने पर भी उन्होंने वो क्रूस उठा लिया ताकि आप और हम आजाद हो जाएं. I want each one of you to just be in your seats for a moment. हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर बैठे लोग हैं वो अपनी ही जगह पर बैठे While the रहें. cameras clear out of the way, और जब तक ये कैमरा जो है यहाँ से चले जाए, I want all of you to just close your हम eyes. चाहते हैं कि सारे जन अपनी आंखें बंद करें. I don't know whom all the Lord has spoken to and who the Lord has spoken to. और मैं ये नहीं जानती कि ये सारे बातें प्रभु ने किससे की है, किससे करना चाहते थे, But you know, my friend, लेकिन आप जानते हैं मेरे दोस्तों, God has brought you to this church प्रभु आपको इस कलीसिया में ले आया because this family of God, क्योंकि ये जो परमेश्वर का परिवार है, we try to reach out to each other और इसलिए हम दूसरों के पास जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं and we keep each other in prayer. और एक दूसरे को हम प्रार्थना में रखते हैं. None of us are perfect, कोई भी संपूर्ण नहीं है, but we help one another to move into perfection. लेकिन हम एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि हम उस संपूर्णता की ओर बढ़ें.